Good afternoon and welcome everyone to this live session. So guys, in the previous classes we have been discussing about how to attempt a question in the mains examination, what are the keywords that you should pay attention to. In today's class, since we have been missing out on the topics, so I'll be covering this RTI as a topic, RTI Amendment Act 2019, etc. And after winding this up, maybe in the next one or two classes, I'll be again coming back to, because only the demonstration of the keywords and telling you as to how to attempt a keyword will not work. Side by side we will cover the topics as well so that we can corroborate both these things, right? जैसे RTI का पूरा पहलू एक बार जानते हैं, उसके बाद I will give you one homework around the RTI, one question as a homework, so that you can see whether whatever we have understood insofar as attempting the question is concerned, whether you have internalized that or not. तो जो हमने सीखा पिछली क्लासेस में उसको चेक करने के लिए कि क्वेश्चन में लिखना क्या है, पूरा आरटीआई में जो भी अभी तक हुआ है मैं पहले पढ़ाऊंगा टॉपिक बेस्ड मैनर में, फिर उसके अराउंड आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, राइट? आई एम डूइंग फाइन नाउ स्वाति, थैंक यू. अ रिपोर्ट कार्ड हैज बीन ब्रॉट आउट बाय सतर्क नागरिक संगठन and the Center for Equity Studies to mark the 15th anniversary of the Right to Information Act. RTI को 15 years हो रहे हैं, तो I told you that probability is there that in 2020 mains or in 2021 mains this question would be there. ठीक है, something around RTI would be there. तो key findings of the report we will turn to later on. We'll come back to this later on. अभी हम समझते हैं कि what is the fulcrum of transparency and accountability in our country. ठीक है, in India, specifically in India and in world also, what has been seen. Just 1 minute before I forget. Bolivia, MVC. All right. So, fulcrum of accountability. हमें RTI नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए exactly? I'll come back. As I said, questions हम साथ साथ लेके चलेंगे. मैंने एक glimpse दे दिया कि क्रिटिकली एनालाइज और एनालाइज में क्या करते हैं. ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक टॉपिक आरटीआई, उसके अराउंड फिर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर तुम लोग आंसर लिखोगे, फिर आई विल करेक्ट देम कि हाँ चल क्या रहा है, तुम्हारे एंड पे कितना तुम लोगों ने उन दो क्लासेस से एब्जॉर्ब किया है, राइट? नाउ देखो, हमें नहीं चाहिए आरटीआई, मेरे पास टाइम नहीं है. एज अ सिटीजन आई कैन पे इनकम टैक्स, दैट्स ऑल. ठीक है, आई कैन पे इनकम टैक्स और माई brethren, the rest of the Indians, my fellow citizens, they are paying income tax. For that in return I need some services from what we call as public servants, because they are the one who are manning these or who manning these institutions. ठीक है, public servants are the one. Who are the public servants? Civil servants plus पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. ठीक है, सिविल सर्वेंट्स में जुडिशियल भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है. ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स में आई डू नॉट पर से, आई डू नॉट हैव द टाइम टू गो फॉर ऑल दिस. सो स्टार्ट होता है यहां से ये फुलक्रम मतलब पूरा साइकिल इसका कहां कंप्लीट होता है. इफ वन ऑफ दीज लिंक्स इज मिसिंग, देन यू आर लीविंग द आरटीआई एक्टिविस्ट्स or people who file the RTI applications as a kind of, जैसे बोलते हैं ना शेरों के बीच में हिरन को छोड़ दिया, तो वो वाली चीज हो जाएगी. राइट टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट. आई नीड माई ड्राइविंग लाइसेंस टू बी रेडी ऑन टाइम. इफ आई अप्लाई फॉर अ कंपनी, माई company registration should be done on a time. If I am applying for the vehicle registration, that should be done on a time. If I am applying for anything, ठीक है, वो सारा कुछ right to time bound delivery of services act. If I want to file FIR, I should be able to do it without any kind of hitch, without any kind of stopping by police personnel or asking for रिश्वत etc. मेरे काम हो जाने चाहिए. बिजनेस, MSME सेक्टर या सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं एक एरिया के, है ना, अगर वो काम नहीं होते तो मैं मांगता हूं इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन की जगह मैं कहां जा सकता हूं? बीच में कंप्लेंट अथॉरिटीज भी हैं. क्या है? CVC और ये सब. ठीक है, बड़े लेवल की बातें हैं. दीज आर फॉर बिग टिकट करप्शन. आई डू नॉट हैव द टाइम. मेरे को मेरा काम चाहिए, मेरे को मेरी सर्विसेज मिल रही हैं. इसका मतलब ऊपर से जो आपने हायरार्की बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ पेंशंस, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस,
वो सब सही काम कर रहे हैं, मैं ये मान लूंगा, बाकी मेरे को कुछ नहीं पड़ा है ना। मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरा काम हो जाए। अगर कटिंग एज लेवल पे प्रॉपर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज नहीं हो रही, कटिंग एज लेवल होता है जहां पे आप किसी बॉडी से, किसी संस्था से कांटेक्ट में आते हो, व्हेन यू कम, वेयर यू कम इनटू टच विद सम ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे जो करप्शन है वो सबसे ज्यादा पिंच करती है, वहां पे जो इम्प्रॉपरिटी है वो सबसे ज्यादा पिंच करती है। मेरे को ये चाहिए कि उस चीज को रिड्रेस कराओ, है ना। मेरा काम हो जाएगा, मैं ये समझ लूंगा हाँ ऊपर जो प्रधान सेवक है या जो भी है मेवक है वो काम कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं चाहिए, पेलम पेल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए एज अ सिटीजन, मुझे कटिंग एज लेवल पे प्रॉपर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज चाहिए। सो इन रिफाइंड लैंग्वेज व्हाट डू वी नीड as a citizen, as the citizen of this country, every client or every user पे basis जो है, I'm not an ordinary client today, ठीक है। I'm not just citizen, I am a citizen client। citizen client का मतलब क्या होता है, client का मतलब होता है, connotation आ जाती है CLIENT, when the things are happening on a user pay basis, ठीक है। मेरे से टैक्स ले रहे हो, that is a general payment towards availment of state services, general payment, tax, income tax और GST is a general payment towards services, ठीक है। हम सर्विसेज अवेल करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, बट यहां पे क्या है, सिटीजन क्लाइंट बेसिस में स्पेसिफिक यूजर पे, इफ आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ रोड आई हैव टू पे टोल टैक्स। तो जब ये इतना प्रिसाइज कोरिलेशन हो रहा है, आई एम एक्सेसिंग सम सर्विस, आई हैव टू पे समथिंग, ठीक है। मैं उड़ान में किसी भी स्कीम में जा रहा हूं, उड़ान स्कीम के तहत, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की उड़ान स्कीम के तहत अगर मैं एयर ट्रेवल कंसेशनल रेट पे कर रहा हूं 2500 रुपीज पर आवर, मेरे को ये पता लगाना है कि किन किन सर्विसेज को, इंडिगो को दिया गया या किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ठीक है। मेरे को ये पता लगाना है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्या ये और चीपर करने का कोई कदम उठाया, ये स्पाइस जेट को क्यों नहीं दिया, करना है ना पता। दिस इज व्हाट आई नीड, बिकॉज I am a citizen client now, I am not just a client। तो जहां जहां ये क्लाइंट कॉनोटेशन बढ़ती चली गई, जहां जहां डिमांड फॉर मनी सिटीजन से टैक्स पे करने के बाद बढ़ रही है, उस हर कंट्री में ये देखा गया, क्या बढ़ने लगी, डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी। दिस इज द डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता हो। तुमने बोला कि हम आपको फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं, बट क्या वो सर्विसेज कंसेशनल रेट पे या फ्री में जो मिल रही थी, मेरी स्टेट ने उसके लिए कितने पैसे दिए, मांगूंगा ना ये इंफॉर्मेशन, आई नीड दिस इंफॉर्मेशन, राइट। अब राइट टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब अगर मेरे को ये सर्विसेज नहीं मिलती, बिग टिकट करप्शन तो हम देख ही लेंगे, सीवीसी है, सीबीआई है, वो सब। एक कॉमन मैन ये चाहता है कि भैया मेरे को इंफॉर्मेशन दो, मेरा काम कब होगा। ये क्या है, आरटीआई इज नॉट समथिंग टू से टू अ टूल टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द करप्ट ऑफिशियल्स और नॉन ट्रांसपेरेंट ऑफिशियल्स, और टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीज पीपल इन द हायरार्की ऑफ थिंग्स, है ना। ऑफिशियल हायरार्की क्या होती है, एक पर्सन काम नहीं कर रहा, आरटीआई क्यों लाया गया, पूरा इसको डिस्क्रिप्टिव वे में समझना, उसके बाद तुम्हें काफी और चीजें भी समझ में आ जाएंगी कि गवर्नेंस है क्या। दिस इज अ टॉपिक ऑफ गवर्नेंस, स्टैटिक प्लस करंट। अभी हम करंट से डील कर रहे हैं। देखो, क्लर्क के पास मैं गया, क्लर्क ने बोला ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के यू वुड हैव टू पे 900 रुपीज, और आजकल तो रेट बढ़ गया, ठीक है, मैं पुराना रेट बता रहा हूं, 1000, 1500, 2000, डिपेंड करता है कौन सी स्टेट में हो। मैंने इस क्लर्क के सीनियर को कंप्लेंट करी, सीनियर को तो कट मिलता है, ठीक है। सीनियर सेज आई विल डेफिनेटली स्कोल्ड हिम, ठीक है, लाइसेंस बना के दो इनका, बोल दिया। आप और सीनियर के पास गए, आईएएस, जिला अधिकारी, जो लोग कंप्लेंट करते हैं उनका लाइसेंस बनवा के दे दिया, बट द कोलोसल वेस्टेज ऑफ टाइम गया, है ना। वो टाइम मैं कहीं और यूज करता, मेरे देश का जीडीपी बढ़ता, वो सब होता, है ना। हैरेसमेंट मेरे को झेलना पड़ा।
इसीलिए ये तो हो गई डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द करप्ट डेलिंक्वेंट ऑफिशियल्स, है ना, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी। बट वी नीड, क्या होने लगा कि इसमें हर सिटीजन ऐसे जाएगा, प्रॉब्लम होगी, फिर विंडो पेन्स उनके तोड़े जाते हैं, दरवाजे शीशे तोड़े रहे, आंदोलन हो रहा है, लोग त्रस्त हो गए, त्राहिमाम हो गए थे ना, पीपल आर फीलिंग एज इफ दे आर harassed to the extent possible, they have been pushed to the wall। तो ये मुहिम आरटीआई की 2002 में इंडिया में स्टार्ट हुई कि वी नीड अ पैरेलल वे। ये क्या है? हायरार्किकल अकाउंटेबिलिटी। हायरार्किकल अकाउंटेबिलिटी तो ठीक है, डायरेक्ट हो गई, सीनियर जूनियर, ठीक है, यहां पे जूनियर लिख देते हैं। ये क्या है? पैरेलल अकाउंटेबिलिटी। नाउ एक और बॉडी आ गई, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दे विल कीप अ चेक। पैरेलल या एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। पहले क्या होता था, टोल फ्री नंबर दे रखा है, सीवीसी को कॉल करो, वहां पे बजती रहेगी ट्रिन 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 ट्रिन, और यही चलता रहेगा, कोई कॉल नहीं उठाएगा। फिर वो लोग भी मिलने लगे, जो एंटी करप्शन स्क्वाड होता था, उनका कोई पर्सन फोन कर देता था कि आपके यहाँ पे छापा पड़ने वाला है, और सेटिंग हो जाती थी। अब क्या हुआ, अब सिटीजन के हाथ में ये दे दिया कि भैया तुम बॉस हो, तुम कोई भिखारी नहीं हो कि यू आर बेगिंग हियर फॉर द सर्विसेज दैट यू आर एंटाइटल्ड टू। नाउ you've got the power of RTI, you've got the power of accessing right to, having right to time bound delivery of services, ठीक है। this is a paradigm shift, समझ रहे हो इस चीज को? I'm not seeing any comments and all। ये चीज हो गई, समझ में आया? दिस इज पैरेलल, इसको लिख लेना गाइस, पैरेलल और जो भी है, ठीक है। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी कैसे आ रही है? एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी थ्रू दीज मीन्स, राइट टू टाइम बाउंड डिलीवरी। अगर नहीं करोगे तो मैं आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करूंगा। आरटीआई एप्लीकेशन कुछ दिनों तक तुम्हारे अंडर रहेगी, पीआईओ के अंडर रहेगी, ये भी हम समझेंगे अभी। फर्स्ट लेवल ऑफ फाइलिंग दी एप्लीकेशन, 30 डेज का टाइम होता है। ऑफिस में कोई क्लर्क होता है, उसको पीआईओ लगा दिया जाता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। अब जब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंफॉर्मेशन नहीं देता, इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया जाता है, क्लर्क है, क्लर्क किसके अंडर है? वही सीनियर जूनियर। अब क्लर्क ने कोई स्कैम नहीं किया है, बट क्लर्क सीनियर के पास जाता है। जैसे कोई लैब असिस्टेंट है या जो भी है, फाइनेंशियल मैनेजर है किसी इंस्टीट्यूशन का, जो भी है, सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उसके पास जाएगा क्लर्क कि सर ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमने ये एयर कंडीशनर्स कितने में परचेज करे, हमने इस लैब में ये जो स्केलेटन खरीदा है ये कितने का खरीदा है, ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आई है। अब सीएफओ जाता है कॉलेज की प्रिंसिपल के पास या सीनियर के पास, प्रिंसिपल क्लर्क को बोलती है तुम इंफॉर्मेशन मत दो, यदि तुम दोगे, अब क्लर्क इज बाउंड टू गिव दिस इंफॉर्मेशन, बट अगर क्लर्क 30 डेज में इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो उस पे 250 रुपीज की पेनाल्टी या कुछ ऐसा है। कोई बात नहीं, वो तो प्रिंसिपल बोलेगी हम देख लेंगे पेनाल्टी, ठीक है। क्लर्क अगर इंफॉर्मेशन देगा तो सीनियर उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिसको गवर्नमेंट पार्लेंस में, गवर्नमेंट की फ्रेजियोलॉजी में, वोकैबुलरी में, ग्लॉसरी में हम क्या कहते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये स्पॉइल हो जाएगी। अगर ये स्पॉइल हो जाएगी तो क्लर्क को अगले साल का प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक है, नौकरी परमानेंट रहेगी। अगले साल जो उसको 1000 का इंक्रीमेंट मिलना है, आय में जो इंक्रीज होनी है, इनकम में, वो नहीं होगी। या फिर अगर 2-3 बार एसीआर साल की खराब हो गई या क्लर्क को ज्यादा काम दे दिया, स्कूल या कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में सारी फी रिसीट्स का काम इसको दे दिया, दूसरे वाले क्लर्क को बोला कि तुम छुट्टी पे चले जाओ, अब वो छुट्टी पे चला जाएगा दूसरा वाला क्लर्क, उसके मजे हैं, ठीक है, और बोल दिया जाएगा 12-13 हजार तुम्हें हम दे देंगे क्योंकि 5 लाख रुपए का एयर कंडीशनर्स में या वो जो गड़े मुर्दे स्केलेटन्स हैं उनमें स्कैम किया है। अब ये क्लर्क छुट्टी पे चला गया, अब नहीं दे रहे इंफॉर्मेशन। अब अगर 30 डेज तक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो सेकेंड अपील कहां पे कर सकता है पर्सन? स्टेट गवर्नमेंट के किसी सीनियर ऑफिशियल को, जिसके अंडर ऐसे 10 कॉलेजेस का चार्ज है, ऐसे 20 कॉलेजेस का, पूरी यूनिवर्सिटी का चार्ज है, ठीक है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको किसका सेकंड लेवल पीआईओ लगाया जाता है। तब तक तो ये डिपार्टमेंट में है, दोनों चीजें ये डिपार्टमेंट में है। अगर सेकंड लेवल पे भी आपकी अपील नहीं चली, यहां पे कोई उसका ये नहीं हुआ,
तो थर्ड लेवल अपील स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास चली जाएगी। ये क्या है? एक्सटर्नल बॉडी है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जब ये कह देगा कि इंफॉर्मेशन दो, अगर उसके बाद भी नहीं दी तो कहां जाएगी इंफॉर्मेशन? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को भी नहीं दी तो कहां जाएगा केस? हाई कोर्ट। क्लर्क सेकंड लेवल बना लेना इसको, ठीक है। इंट्रा डिपार्टमेंटल, अभी तक कंप्लेंट डिपार्टमेंट के अंडर ही है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही है, ठीक है, या इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल। उसके बाद थर्ड लेवल क्या है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। यहां पे भी इस कंप्लेंट का निवारण सॉल्यूशन नहीं हुआ तो सीआईसी पे भी नहीं हुआ तो हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट पे भी नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट। डन। इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, यस। सोर्स कह सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं? एफएक्यू सेक्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो हर मिनिस्ट्री की वेबसाइट वगैरह पे दिए होते हैं, मैंने उसको सिंप्लीफाई करके बता दिया। क्लर्क इज द पीआईओ, ठीक है। यहां से पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इंट्रा डिपार्टमेंट, अब यहां पे क्या है? एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कह सकते हैं ना, डिपार्टमेंट के बाहर चली गई अब कंप्लेंट। अब ये जो नंबर है इन कंप्लेंट्स का, यहां से यहां जाने वाली का, दिस नंबर ऑफ लेट इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट फ्लॉ, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स नॉट बीइंग रिजॉल्व्ड, number of complaints not being resolved at this level is increasing, that is why burden on state information commission is increasing, ठीक है। अब यहां पे burden increase हो रहा है, but यहां पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में यदि 10 मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को अपॉइंट डिले जानबूझ के किया जा रहा है, जजेस को भी जानबूझ के डिले किया हुआ है प्रोसेस को, ठीक है। डायलेटरी प्रोसेसेस, डायलेटरी मतलब DILATORY, डायलेटरी प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, जानबूझ के नहीं करेंगे। क्यों? जैसे जुडिशरी, रेगुलर जुडिशरी को सफोकेट, अगर देखो जुडिशरी काम कर रही होती तो ये सब दिखावे की जरूरत नहीं थी, है ना, दिखावे की जरूरत नहीं थी। ये सब क्या है? जुडिशरी एक्स्ट्रा या पैरेलल जुडिशियल मैकेनिज्म्स हैं। जुडिशरी का काम क्या है? ग्रीवेंस रिड्रेसल, कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स को सुलझाना, एटलीस्ट लोअर कोर्ट्स पे। अब लोअर कोर्ट्स इतने ज्यादा क्लॉगिंग हो गई, जैसे पानी अटक जाता है ना, वैसे क्लॉगिंग ऑफ केसेस हो गया। हमने एक पैरेलल मैकेनिज्म बना दिया। जब पैरेलल मैकेनिज्म बनाया, उसमें भी आप वही सेम प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कर रहा है, चाहे कोई बोले कि मैं चौकीदार हूं, या फिर ये बोले कि मैं ही सरकार हूं, या मैं ही बेकार हूं, और मैं ही रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स हूं। वो हर आदमी यही कर रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जानबूझ के सीआईसीज को अपॉइंट ना करना, प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। व्हाई देयर इज अ डिले? देयर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट एट प्ले। डन। वेस्टेड इंटरेस्ट, स्वार्थ। आगे चलते हैं। अब वापस आते हैं इस चीज पे कि ये हमने एक्स्ट्रा सिटीजन के हाथ में जो पावर दी, ये क्यों देनी पड़ी, ठीक है। मार्गरेट थैचर 1980s यूएसए में, मैं गवर्नेंस के टॉपिक से इसे फिट कर रहा हूं ताकि जब हम गवर्नेंस का टॉपिक लेंगे तो यू शुड बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। 1980s में रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द सेकंड वन, मार्गरेट थैचर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो इन गवर्नमेंट्स ने 1950 से लेकर 1980s में वो किया जो हम आज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉपुलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलिज्म? पॉपुलिज्म मींस लोक लुभावने वादे। आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, भाइयों बहनों,
तेल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, वो सब चीजें, किसी को अखिलेश दे दिया, मतलब लैपटॉप दे दिया, ठीक है, वो सब चीजें, किसी को सोने की बालियां बट रही हैं साउथ इंडिया में, लोक लुभावने वादे करना, फ्रीबीज, कल्चर ऑफ गिविंग फ्रीबीज। अब जब ये फ्रीबीज वगैरह मिलने लगी तो क्या हुआ, बाय 1950s, फ्रॉम 1950s टू 1980s ये मिलने लगी। सरकार को फिर यहां पे याद आया कि दिस इज अनसस्टेनेबल। उनके फिस्कल डेफिसिट जैसे हमारे आज बढ़ रहे हैं, उनके फिस्कल डेफिसिट्स काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगे। अब जब उनके फिस्कल डेफिसिट्स इतने ज्यादा इंक्रीज होने लगे तो उन्होंने ये सोचा कि नो, वी नीड टू हैव यूजर पे बेसिस। यूजर पे बेसिस में उन्हें क्या याद आया, प्राइवेट सेक्टर, सिटीजन शुड बी ट्रीटेड एज अ, जो पे करेगा उसको सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है, सिटीजन शुड बी ट्रीटेड एज अ सिटीजन क्लाइंट। अब सिटीजन क्लाइंट ट्रीट होने लग गया, जिसके पास पैसे, क्योंकि उनके लिए वो सिस्टम सही था, दे वर अबव द मीडियन एवरेज इनकम ऑफ द वर्ल्ड। आर वी देयर? नो। साइकिल वाले को आप देखोगे यहां पे ट्रैफिक टोल टैक्स पे लड़ाइयां होती है, क्यों होती है इंडिया में? दूध वाला है, वो बगल के आसपास नेबरहुड के गांव में रहता है, वो 10 बार वहां से निकलेगा। अब उस पर आप 10 बार टोल टैक्स लगाओगे तो वो क्या करेगा, दूध की जगह तुम्हारा टोल टैक्स वाले से लड़ेगा, खून बहाएगा। ये सब प्रॉब्लम्स हम काफी जगह देखते हैं। यूजर पे बेसिस ठीक है जो ब्यूटी क्लिनिक्स है उनके लिए, लेकिन सरकार की जो ड्यूटी क्लिनिक्स हैं उनके लिए यूजर पे नहीं है ना, उनके लिए सरकार को पे करना पड़ेगा। दिस इज दी सॉवरेन ड्यूटी। अब आप इंटरनेट थोड़ी ना दे रहे हो, इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ यूटिलिटी। पानी के लिए अगर सरकार पैसे लगाने लगती है, वो भी प्राइवेट कंपनी के जरिए, टाटा पावर, रिलायंस पावर, स्कैम भी हो रहे हैं। अब जब ये प्राइवेट सेक्टर आने लगा तो सिटीजन और ज्यादा अनसेटल होने लगा, केजरीवाल और ज्यादा अनसेटल होने लगे। ही बिकेम एन आरटीआई एक्टिविस्ट, ही स्टार्टेड हिज जर्नी एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट। ऐसे ही लाखों और हैं। जब उनको यह पता लगने लगा कि प्राइवेट सेक्टर के नाम पे इनडायरेक्टली, मेरे से डायरेक्ट पैसे नहीं लिए जा रहे, कहीं कहीं जगह पे डायरेक्ट लिए जा रहे टोल टैक्स सालों साल चल रहे हैं, 15 साल 20 साल। अब हमारे जेनेटिक कोड में क्या है, आदत है गुलामी की, हम जेनेटिक कोड से ही गुलाम हैं। अच्छा टोल टैक्स लग रहा है, देना ही पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि साइड से निकल लें, है ना, जैसे अंग्रेजों के जमाने में भगत सिंह करते थे कि भाई यहां पे पुलिस वाले खड़े हैं, चलो साइड से निकल लेते हैं। आज वही आदत हमारी है। हम ये नहीं देखते कि टोल टैक्स 15 साल से क्यों लग रहा है। नेशनल हाईवे 1 उसको 20 साल हो गए होंगे शायद, वो बन ही रहा है और टोल टैक्स चल रहा है। और थोड़ा सा आगे जाओ, गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, गड्ढा आ जाए, कुछ भी आ जाए, जग आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। हम लोग जहनी तौर से अभी तक गुलाम हैं। लेकिन कुछ एक्टिविस्ट जो कि जिनको एक्सपोजर मिला या कुछ, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की जो करप्शन थी, टैक्स वगैरह, जो हमने पॉलिटी के कोर्स में भी पढ़ा, शीला दीक्षित एंड ऑल, ठीक है, दिल्ली एनडीपीएल को न्यू दिल्ली पावर लिमिटेड ने रिलायंस पावर को हायर कर लिया। अब उनको पैसे दिए जा रहे हैं, दे आर डोलिंग आउट मनी, ठीक है, उनको ज्यादा रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है। लेकिन मेरे से क्योंकि डायरेक्ट चार्ज नहीं किए जा रहे, इसलिए ये क्या हुआ, आउटसोर्सिंग ऑफ करप्शन होने लगा। इसलिए जिन लोगों को ये समझ में आया, उन्होंने आरटीआई की डिमांड करी। वर्ल्ड बैंक ने हम पे आरटीआई एक वैसे इंपोज करने की कोशिश करी, और वो अच्छा भी था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक वाज इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग अबाउट मोर ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया। यूएसए वर्ल्ड बैंक को ये कहता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को इंडिया पे ऐसे रिफॉर्म्स इंपोज करो, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज पे। क्यों करो? क्योंकि अगर वहां पे रिफॉर्म्स होंगे, देयर कंपनीज, citizen will get informed here. When citizen will get informed here, citizen will ask corruption in the domestic companies, corruption between the hand in glove kind of relationship between domestic contractors, domestic companies and government to be exposed. expose होगा तो फिर बाहर से FDI, प्राइवेट कंपनीज के आने की मांग उठेगी कि वहां पे स्कूटर इतने का बिकता है, यहां पे स्कूटर महंगा क्यों, वहां पे टोल टैक्स नहीं चलता, यहां पे क्यों, वहां पे मोबाइल फोन आ गए, यहां पे क्यों नहीं, ठीक है। सिटीजन विल डिमांड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, ही विल गेट मोर एनलाइटेंड एंड ही विल रेज हिज वॉइस कि ये खत्म करो, और कंपनीज आएंगी। वर्ल्ड बैंक इंड्यूस्ड रिफॉर्म, डिमांड ऑफ सिटीजन टू ask the private companies to give information, government companies to give information कि public works department इतनी महंगे में सड़क क्यों बना रहा है, प्राइवेट कंपनी से सस्ते में बनाएगी। ये सारी मांगे उठने लगी, ठीक है। तो सिटीजन का शुरुआत कहां से होती है? कुछ तो हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं, है ना, और वो बाद में चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे या जो भी बन जाएंगे, केजरीवाल बन जाएंगे। कुछ हैं
जो अपने स्वार्थ के लिए कि मेरे को बस मेरे काम की इंफॉर्मेशन दो। व्यापम स्कैम कैसे एक्सपोज हुआ? ऐसे ही एक्सपोज हुआ। क्यों? मैंने एग्जाम दिया है, मेरे को यह बताओ कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। मैंने तो अच्छे से क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन भी ऐसे ही थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हेंस प्रूव्ड वाले क्वेश्चन। ये है, आंसर यही निकलता है। जब मेरे क्वेश्चन ठीक थे, आंसर गलत क्यों? मैं पीछे क्यों? नेता का बेटा आगे क्यों? एक्सपोज हुआ। अब एक्सपोज होने के बाद अगली कड़ी क्या है? अगर यहां पे ये लिंक मिसिंग होगा तो क्या होगा? यू आर मेकिंग द आरटीआई एक्टिविस्ट और आरटीआई एप्लीकेशन फाइलिंग पीपल, फाइलर्स वल्नरेबल। ठीक है, आपने उन्हें छोड़ दिया। विसल ब्लोअर्स कौन होता है? जो सीटी बजाता है। सीटी किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ, जो भी चीज गलत हो रही है। अब उसने आपको एक्सपोज किया किसी करप्ट आईएएस, आईएफएस या किसी को, अब उसके खिलाफ आवाज बंद करने के लिए, उसको चुप कराने के लिए इनको मार दिया जाएगा। आरटीआई एक्टिविस्ट्स के मर्डर्स इंडिया में काफी बढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले 5 सालों में भी और उससे पिछले 5 सालों में भी काफी बढ़ रहे हैं। फिर अगली इंस्टीट्यूशन ये है कि अगर ऐसे कोई स्कैम्स होते हैं तो लोकपाल होना चाहिए। ठीक है, विसल ब्लोअर्स या कोई और, आप लोकपाल के साथ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, क्योंकि सीबीआई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर है। लोकपाल रिलेटिवली फ्री है, लोकपाल रिलेटिवली ऑटोनमस होगा। ठीक है, इसलिए अब ये सारा जो फुलक्रम है, अगर इसमें से एक भी चेन में लिंक मिसिंग होगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। आरटीआई एक्टिविस्ट क्या करेंगे? राइट टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की जगह पैसे देने लगेंगे, क्योंकि आरटीआई में क्लॉग आ गया, ब्लॉकेज आ गई। अब अगर ये ब्लॉकेज नहीं भी है, आगे उन लोगों की हत्या हो जाएगी अगर कोई एक्सपोज करेगा। तो मैं सत्येंद्र दुबे की तरह, जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे ना, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अटल बिहारी वाजपेयी को लेटर लिखा था कि ये स्कैम हो रहा है, और वो ट्रेल से अपने घर उतरते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर सत्येंद्र दुबे मर्डर हो जाता है ना, ताकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट ना छीन ले। विसल ब्लोअर्स एक्ट डन। विसल ब्लोअर्स एक्ट है तब भी इन केसेस की फास्ट पेस्ड सुनवाई और इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज के लिए, ताकि केसेस सीबीआई में जाएं तो लोकपाल की सुपरविजन के अंडर जाएं, ओवरसाइट ऑफ लोकपाल। अगर ये नहीं होगा तो ये सब तीनों भी वेस्ट हैं। ऑल दीज 4 थिंग्स आर इंटरट्वाइंड। राइट, दिस इज वाई I have labeled it as fulcrum of accountability. इनको फ्रेगमेंटेड वे में भी देखोगे, बट कोई भी आंसर लिखोगे तो क्वेश्चन ये है, why RTI, एक रैंडम वे में मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, why RTI is not able to have its full impact। मतलब फुल ब्लॉसमिंग होती है ना, जब फ्लावर है वो पूरी तरह ब्लॉसम होगा तो अच्छा लगेगा। आरटीआई पूरी तरह क्यों नहीं हो पाया? तो ये रीजंस हैं। ठीक है, आपको ये दिखाना होगा, इसका कलर कुछ चेंज कर दिया मान लो। ठीक है, एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे, इसको शेडेड कर दिया ऐसे। ठीक है, और इनको व्हाइट छोड़ दिया, तो इंटरलिंकिंग ऐसे दिखा दी। दीज 3-4 थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, यू कैन मेक दिस डायग्राम। और ये उसका क्रक्स है। अब लिखोगे क्या कि ये सारी चीजें अगर होंगी तभी फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इंडिया में आरटीआई का एक और रीजन है कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। इन अ कंट्री वेयर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड फुल्ली, उसके लिए एनजीओज वगैरह तो कर सकती हैं। क्यों? एनजीओज आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकती है बिकॉज देयर वाज नो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। ठीक है, लोकस स्टैंडाई वी अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर पॉलिटी क्लासेस, बट आई विल रिपीट हियर फॉर माय ओनली करंट अफेयर स्टूडेंट्स कि तुम्हारी क्या औकात है। किसी थर्ड पर्सन के बेसिस पे I cannot file the RTI application. Why? I can file because there was a principle of locus standi. Locus standi मतलब मैं उस केस से, मेरा उस राशन कार्ड वाले तुकाराम से या नारायण सिंह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल करके सूचना मांग सकता हूं। ठीक है, 2019 के आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट में इसकी हम बात करेंगे, इसको भी रिमूव करने की बात करी गई थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। लोकस स्टैंडाई प्रिंसिपल जब रिमूव हो जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि जिसका लोकस स्टैंडाई प्रिंसिपल जब अप्लाई हो जाएगा, आरटीआई में अभी एप्लीकेबल नहीं है, अगर गलती से हो जाता है तो क्या होगा?
लोकस स्टैंडर्ड मतलब जिसकी कंप्लेंट है, जो उसमें इंटरेस्टेड है, जिसने एग्जाम दिया है, बस वही आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर पाएगा. एनी थर्ड पर्सन रिमोटली रिलेटेड और नॉट रिलेटेड टू द केस और द इशू एट हैंड एट ऑल वुड नॉट बी एबल टू फाइल द आरटीआई एप्लीकेशन. ठीक है, तो ये सारी चीजें इंडिया में आपको ये समझना होगा. अब मैंने बोलीविया यहां पे लिखा था स्टार्टिंग में. व्हाई डिड आई राइट बोलीविया? बोलीविया में क्या है, हमने लोकपाल तो बना दिया. अगर हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, दीज आर फॉर बिग टिकट करप्शन. एज अ कॉमन मैन आई एम मोर इंटरेस्टेड इन व्हाई द स्ट्रीट लाइट इन माय लोकेलिटी इज नॉट वर्किंग, है ना. बोलीविया ने एक अच्छी शुरुआत करी, बोलीविया म्यूनिसिपल विजिलेंस कमीशन. वी डू नॉट हैव दिस. इंडिया में लोकपाल की भी ये प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो लोकपाल है वो सेंट्रल लेवल पे है और स्टेट लेवल पे है. ठीक है, अब जो सेंट्रल लेवल पे जो लोकपाल है वो बड़ी बिग टिकट करप्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनमें ही इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा. स्टेट लेवल पे जो है वो स्टेट चीफ मिनिस्टर और ये सब उस लेवल पे, स्टेट मिनिस्ट्री लेवल पे जो प्रोक्योरमेंट होती है फूड ग्रेन्स की या किसी बसेस की नई टाटा कंपनी से टाटा की बसेस परचेज करी, कितने प्राइस पे परचेज करी, वो सब लेवल पे तो हो जाएगा. एक नीचे के लेवल पे हमारी कंट्री में दिस इज मिसिंग. म्यूनिसिपल और किस लेवल पे चाहिए हमें, पंचायत लेवल पे, कि वहां पे क्यों नहीं हो रहा, वहां पे इन्वेस्टिगेशन होगी. ठीक है ना. तो आपने ऊपर के लेवल पे तो बना दिया, नीचे के लेवल पे नहीं बनाया आपने. ठीक है, तो हमारा जो कॉमन इंटरेस्ट है, अब यहां पे नीचे के लेवल पे आपने क्या किया, राइट टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट. रूरल एरियाज में आपने क्या किया, सोशल ऑडिट दे दिया. ठीक है, रिलेटेड एरियाज आई एम टेलिंग यू सो दैट यू कैन विजुअलाइज दी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, अब की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट फैक्ट्स पे आते हैं. रिपोर्ट कार्ड हैज बीन ब्रॉट आउट बाय सतर्क मतलब विजिलेंट नागरिक संगठन, सतर्क सिटीजन्स ग्रुप. ठीक है, तो एंड द सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज टू मार्क 15th एनिवर्सरी. रेलेवेंस, जीएस मेंस पेपर 2, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी हो गया. 2,20,000 आरटीआई केसेस आर पेंडिंग एट द सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस व्हिच आर द फाइनल कोर्ट्स ऑफ अपील एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं. This is the structure. First appeal, public authorities designate some of their officers, clerks as public information officer. First request for information goes to central or state assistant public information officer and central state public information officer designated by the public authorities. उनको 30 दिन के within 30 days they have to provide the information. If they do not, automatically it will go to, you are eligible for second appeal. Appeals from their decisions go to an appellate authority. Appeals against the order of appellate authority go to state information commission और the central information commission. अगर मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, अगर मैटर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास. ठीक है, these information commissions consist of chief commissioner and up to 10 information commissioners. Done. ये था इसका फैक्चुअल पार्ट. 2,20,000 आरटीआई केसेस आर पेंडिंग. महाराष्ट्र हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस. ये वो फॉर्डर मटेरियल है जो हमें अपने आंसर को सब्सटैंशिएट, जैसे एग्जामिन द केस फॉर स्ट्रेंथनिंग आरटीआई, है ना. तो आप ये लिखोगे फॉर इंस्टेंस महाराष्ट्र हैज गॉट दीज मेनी नंबर्स. ठीक है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड और मोर देन 2,20,000 आरटीआई केसेस आर पेंडिंग. दिस इज लाइक सब्सटैंशिएशन ऑफ द केस फॉर स्ट्रेंथनिंग आरटीआई. अदरवाइज क्या होगा, ये चीजें और कंपाउंडिंग होती जाएगी इन प्रॉब्लम्स की. राइट, इन ऑर्डर फॉर यू टू सब्सटैंशिएट ये सारा देना पड़ेगा. अंडर द आरटीआई एक्ट पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर्स ऑन various aspects of their structure and functioning. This includes disclosure on their organization, function, structure, powers and duties of its officers, financial information. Intent of such, अब देखो RTI Act का एक section 4 है. Section 4 talks about suo motu disclosure. Why should I be begging? मेरे को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? इंफॉर्मेशन है, तुम दो, है ना. क्लर्क के ऊपर पेनल्टी लगाने से कुछ नहीं होगा. क्लर्क
पेटी ऑफिशियल, उसकी नौकरी भी चली जाएगी, उसको करप्ट ऑफिशियल बोलेगा मैं तुझे 5 लाख देता हूं, ये 50 करोड़ वाली इंफॉर्मेशन जो है राफेल वाली विदाउट फेल उसको डिस्क्लोज मत करना, गलती से भी मत करना, ठीक है। तो 5 लाख 5 ऐसे केस में तो 50 लाख भी दे दिए जाए। अब पॉइंट ये है, मेरा इसमें ये सुधार का तरीका ये था कि सेक्शन 4 जब आरटीआई एक्ट 2004 लाया गया था तो इन अ टाइम बाउंड मैनर लिखा गया था, बट ये नहीं लिखा गया था कि सुओ मोटो, भाई मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप सुओ मोटो डिस्क्लोजर करो। होना ये चाहिए कि ये लिख दिया कि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर होगा, लेकिन किसी ऑफिशियल ने, कोई भी आईएएस ऑफिसर ने अपनी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो ऐसी है कि ये दिल मांगे मोर। सिटीजन को आप एक टुकड़ा इंफॉर्मेशन का दोगे वो दूसरा मांगेगा, दूसरा दोगे तो वो तीसरा मांगेगा। जैसे यूपीएससी में क्या हुआ, यूपीएससी ने मार्क्स डिस्क्लोज करे कि इनका रैंक ये है, पहले यूपीएससी मार्कशीट नहीं डिस्क्लोज करती थी, टॉपर डिक्लेयर कर दिए, हो गया काम, ठीक है। इसलिए तो ज्ञानी जैल सिंह का जो दामाद जो कि माली था वो क्या बन गया, आईएएस ऑफिसर, ठीक है, बन जाते थे लोग। फिर यूपीएससी ने मार्क्स डिस्क्लोज करना शुरू किया, तो फिर लोगों ने ये बोला कि पर क्वेश्चन आप मार्क्स बताओ, यूपीएससी ने बोला नहीं हम नहीं बताएंगे। फिर किस एस्पिरेंट्स ने ये बोला कि आप हमारी आंसर कॉपी की फोटोकॉपी तो हमें दो कि किसमें कितने मार्क्स मिले हैं, कहां हमने गलती करी है, वो भी नहीं देंगे। सेक्शन 8 में आती है यूपीएससी, ठीक है, जो बॉडीज को नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट माना जाता है उन्हें ये डार्क होल ऑफ आरटीआई में डाल दिया जाता है। सेक्शन 4 इंटू 2 8। 4 क्या कहता है, सुओ मोटो डिस्क्लोजर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स ओन डिस्क्लोजर नहीं करती, सुओ मोटो डिस्क्लोजर है ही नहीं। मेरा ये मानना है, सॉल्यूशन इसका लिखो, पेनाल्टीज शुड बी इम्पोज्ड ऑन द डिपार्टमेंटल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि अगर ये कोई भी इंफॉर्मेशन मेरी कारगुजारी में अगर कोई इंफॉर्मेशन है, मेरे जुरिस्डिक्शन में अगर कोई इंफॉर्मेशन है, अगर मेरे जूनियर ऑफिसर्स उसे इंप्लीमेंट नहीं करते तो मेरी पे का 10% कटेगा, या मेरी पे का, अगर मेरी पे 1 लाख रुपए है तो उसमें से 1000 कटना चाहिए, 2000 कटना चाहिए, और वो मेरी एनुअल आईएएस ऑफिसर की एनुअल रिपोर्ट में, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए कि इस महान व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान आरटीआई बर्डन बढ़ा, होलिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना। और फिर नीचे के जो लोग हैं जिनकी यहाँ पे नेग्लिजेंस है, जैसे तुम लोग ये बोलते हो कि कभी मैगजीन नहीं आई, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, पेनाल्टी कल्चर। गवर्नमेंट में अब यहाँ पे तो पेनाल्टी कल्चर करो तो ये लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, प्राइवेट सेक्टर कहीं और चले जाएंगे, सरकारी आदमी कहीं जाना नहीं चाहता, तो उनकी पेनाल्टी उनकी पे में से कटनी चाहिए अगर उनकी नेग्लिजेंस है। इसमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि यहां से इंफॉर्मेशन इस क्लर्क के पास में आ गई, इस असिस्टेंट के पास में आ गई, असिस्टेंट के बाद जूनियर असिस्टेंट के पास में आ गई, इसके सिस्टम पे जूनियर असिस्टेंट के बाद ये क्लर्क के पास में भी पहुंच गई, तो क्लर्क ने नहीं अपलोड करी, या जूनियर असिस्टेंट ने टाइम बाउंड मैनर में इंफॉर्मेशन नहीं दी, या असिस्टेंट ने नहीं दी, ये सारा कुछ मेल्स पे दिख जाता है ना, हमारे पास मेल कितने बजे आई। तो इस MIS को इंप्लीमेंट करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे आप अमेजन में आजकल देखते हो कि डिलीवरी बॉक्स आपका पार्सल कहां पहुंचा है, वैसे ये भी ट्रैक के होते हैं सारी चीजें। बट भाइयों बहनों, मैं इसे नहीं करूंगा क्योंकि तुम मुझसे PM केयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए सुओ मोटो डिस्क्लोजर सीनियर लेवल पे कोई पेनाल्टी का इफेक्ट नहीं है ना। मैं अगर IAS ऑफिसर हूं तो मैं उस क्लर्क को ट्रांसफर कर दूंगा कि भाई तुम नहीं डिस्क्लोज कर रहे हो, लेकिन ऊपर के लेवल पे आरटीआई एक्ट में एक फ्लॉ है कि उसने कोई ऊपर के लेवल पे डिपार्टमेंटल हेड पे कोई पेनाल्टी नहीं लगाई। लिखो इसे, डन, लिख लोगे ना रिकॉर्डेड देख के या कैसे करके। अब द इंटेंट ऑफ, ये राजस्थान में किसने किया, अशोक कुमार गहलोत ने क्या किया, जन सूचना पोर्टल JSP लेके आया। अभी समझ रहे हो, नहीं गुस्सा आता है गाइस, देखो गुस्सा उसी पे आता है जिससे एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षा होती है। अब इतना बड़ा मैंडेट दिया है भाइयों बहनों को, भाइयों बहनों ने इन भैया को, लेकिन ये भाई साहब क्या है, भाइयों बहनों ही पेलते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जहां एक्सपेक्टेशनल मिसमैच होता है वहां पे एंगर सिटीजन का निकलेगा ही। नाउ अब इंटेंट ऑफ सच सुओ मोटो डिस्क्लोजर इज दैट पब्लिक शुड नीड मिनिमम रिकोर्स थ्रू द एक्ट टू ऑब्टेन।
such information. If such information is not made available, citizens have the right to request for it from the authorities. This may include information in the form of documents, files, or electronic records under the control of public authority. The intent behind the enactment of the act is to promote transparency and accountability. Done? ये सारी अच्छी अच्छी बातें लिख रखी हैं. पब्लिक अथॉरिटीज कौन है? बॉडीज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट established under constitution, ठीक है, जो भी है, autonomous government, यूपीएससी, सीएजी, ये सारा कुछ, and under any law, कोई भी सरकारी बॉडी, ठीक है. सेक्शन 2H, if you do not remember from your polity classes and for my current affairs students, section 2H of RTI Act defines public authority. Even if there is an NGO which is substantially financed by the government exchequer, even if it's an NGO, ठीक है, substantially financed by government, state government, central government, municipality, any level, that NGO, अगर substantial finance का मतलब क्या है? 90% of the expenses of that NGO if they come from this level, ठीक है. The act has established a 3-tier structure for enforcing the right to information. ये हो गया. तो अगर उस एनजीओ का खर्चा 90% तक ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर एनजीओ का सरकार से आता है, तो वो एनजीओ भी आरटीआई के अंडर ही माना जाएगा. डन. रेट ऑफ डिस्पोजल. एट द करंट रेट ऑफ डिस्पोजल द ओडिशा कमीशन वुड टेक मोर देन 7 years. मैं इसको थोड़ा नहीं पढ़ूंगा बिकॉज वी गाइज आर इंटेलिजेंट इनफ. वैकेंसीज क्यों नहीं फिलअप करी जाती? ठीक है, जब चौकीदार आया तो चौकीदार ने ये बोला कि भाई हम जो है ना किसी को खाने देंगे, ना किसी को, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है, लेकिन निकल जाऊंगा. लगता तो ऐसा ही है. देखो, खाता कौन है? जो इसको चबाने में टाइम लगता है या कुछ. एक होता है खाना, एक होता है सिर्फ गटक जाना. तो मेरे को उसका यही मतलब समझ में आता है, या तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस सीधा ही गटक जाऊंगा. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो वैकेंसी है 9 महीने तक वेकेंट रखी गई. प्रोबेबली ही मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर सम न्यू चौकीदार अवतार टू टेक बर्थ. 9 months इज द जेस्टेशन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग्स में ब्रीडिंग में ये सब. तो मे भी किसी और ने अवतार लिया होगा और कृष्णा इतनी जल्दी बड़े हो गए होंगे पूतना को मारने के लिए, कोई हुआ होगा कुछ. एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस रिटायर हुए जो कि बहुत क्लोज थे अरुण जेटली के. शायद उनके रिटायर होने की वेट चल रही थी कि ये रिटायर होंगे तो इनको सेंट्रल इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे सगे हैं. और उसके बाद भी वैकेंसीज रखी जाती हैं जानबूझ के. सॉल्यूशन, पॉइंट काउंटर पॉइंट रखते हैं ना. सॉल्यूशन ये है कि व्हेन इन द सेरेमोनियल ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब सेरेमोनियल ऑफिस में, सेरेमोनियल है, नॉमिनल है, ठप्पा लगाने के लिए रबर स्टैम्प, नॉनदलेस इट इज द हाईएस्ट ऑफिस, हमें ये पता है, ठीक है. Why can't we have, when in the ceremonial office of the President of India, we've got a provision that there can be no vacancy for more than 6 months. Done? Fair enough. पढ़ चुके हैं हम ये. जब सेरेमोनियल ऑफिस में ये है तो मेरे भैया ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज है ना, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बट ये तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने ये इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया है. तो जो ड्यूली फंक्शनल हैं, जो ऑपरेशनल ऑफिसेज हैं, सेरेमोनियल नहीं है, जब सेरेमोनियल ऑफिस में वैकेंसी नहीं हो सकती तो फिर यहां पे वैकेंसियां क्यों, यहां पे वैकेंसीज क्यों, है ना. ये कोई क्लरिकल पोस्ट तो है नहीं कि चलो चल जाएगा. रेलवे में 13,64,000 वैकेंसीज पोस्टिंग्स हैं जो सैंक्शन हैं, जो कि लोग हो सकते हैं. उसको 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख पे ले आए आप, कोई बात नहीं, वो लाइन मैन है, गैंग मैन है. लेकिन ये कौन से गैंग को बचाने के लिए इन मैन को अपॉइंट नहीं किया जाता टाइम पे, है ना. कांग्रेस की सरकार ने भी आरटीआई को डाइल्यूट करने की कोशिश करी थी, लेकिन इतना नहीं कि जितना इस सरकार ने किया है 2019 में. आगे देखेंगे. ओडिशा इज फंक्शनिंग विद जस्ट 4 कमिश्नर्स. स्टेट गवर्नमेंट की तो बात नहीं करें तो अच्छा, राजस्थान हैज ओनली 3, ठीक है. झारखंड हैज, ये थोड़ा डेटा पुराना है बट यू कैन गेज वेरी वेल कि क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है. स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ झारखंड एंड त्रिपुरा आर डिफंक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. ना इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, ना अपील होगी, फिर वही सनी देओल वाला फिनोमिना, तारीख पे तारीख वही चलता रहेगा, है ना.
The government officials face hardly any punishment for violating the law. Penalties were imposed only on 2.2% of the cases. मॉनिटरी पेनाल्टीज की बात हो रही है. प्रोमोशनल पेनाल्टीज जो मैंने कहा, अगर वो होती तो सारा काम दुरुस्त हो जाता, इंफॉर्मेशन दी जाती और काम सही हो जाता. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजंस. ये फिलर लाइन है, ठीक है, इसको पढ़ लेना साथ में. Authorities under RTI Act. Central Information Commission is set up under RTI Act. Chief Information Commissioner heads the Central Information Commission. ठीक है. This body hears the appeal from persons who have not been satisfied by public authority and also address major issues related to RTI Act. Information commissions at the center and in the states are the final adjudicators, prelims. ठीक है, to act against violations of the legislation. Chief Information Commissioner and Information Commissioners are appointed by President on the recommendations of a committee. Factual. Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister. In the case of the Information Commissioners, they are appointed for 5 years subject to age limit of 65 years. Now, when the initial request for information made to a public information officer designed by each public authority fail, ठीक है, initial request for the information made to PIO, यानी कि जो clerical level है, जो starting level है, वहां पे fail हो जाती है, petitioner is entitled to lodge an appeal to the authority within the department. तो मैंने बताया इंट्रा डिपार्टमेंट रहती है 2 लेवल्स तक, PIO, फिर उसके बाद अपील. जब यहां पे हो जाती है तो इट कैन बी मेड टू द ऑफिस ऑफ CIC, तो एक्स्ट्रा हो गई, फिर डिपार्टमेंट के दायरे से, ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चला जाता है मैटर. ठीक है. Yes, Arshika. In case of no SIC, penalty will go to High Court. ठीक है. When that fails to, a further appeal can be made to office of CIC or State Information Commission. Significance of RTI Act. The Right to Information Act has been held by Supreme Court. ये सारा पढ़ोगे, ये हम पहले भी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट आप खुद कवर करोगे because there is a lot to analyze. Transparency and accountability. Every year, nearly 6 million applications are filed. 60 lakh applications are filed under RTI Act, making it the most extensively used transparency legislation in the world. Reason? अगर क्वेश्चन आए यूपीएससी में, मेंस में, what is the reason that in India we are witnessing an increasing phenomena of RTI applications year after year? ठीक है. RTI Act brought a revolutionary change. अच्छी बातें लिखी जाएंगी, फिर ये लिखा जाएगा however we are witnessing an increase. So is it good or is it bad? Arguments in favor. This is good. Citizens are awakening. आंसर में ये लिखोगे ना कि मतलब एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो रहा है, कि लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अखबार पढ़ना शुरू कर रहे हैं. अखबार पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उन्हें समझ में आता है अच्छा ये ऐसे स्कैम भी होते हैं, तो लोग जानकारी मांगने लग रहे हैं. वी आर बिकमिंग एन इन्फॉर्म्ड सोसाइटी. ठीक है. और मिस इन्फॉर्म्ड सोसाइटी. दूसरा रीजन क्या है? सेक्शन 4 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट. सेक्शन 4 का वॉयलेशन है ना. सुओ मोटो डिस्क्लोजर नहीं हो रहा, इसीलिए लोग ज्यादा एप्लीकेशंस मांग रहे हैं, है ना. और गवर्नेंस डेफिसिट है. राइट टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा शायद, इसीलिए भी ज्यादा मांग रहे हैं. तो ये आपको थोड़ा सा सोचना होगा, प्लस माइनस दोनों. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर क्या है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या है, और भी पॉइंट सोचोगे. ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, देन ओनली यू वुड बी एबल टू राइट एन आंसर. Then during the COVID-19 crisis too, the law has been widely used to seek important information. It includes information about availability of medical facilities to hold government departments. PM आशा स्कीम के अंदर कितने बेनिफिशियरीज हैं, PM किसान के अंदर कौन है, ये सारा कुछ. अमिताभ बच्चन ने PM किसान की ऐड करने के 6 करोड़ रुपए लिए, ये पोल खोल दे, राइट, RTI. तो वो सारी चीजें हैं. न्यूज चैनल्स इसे यूज कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इसे यूज कर रहा है. लाइट ऑन करप्शन एंड आर्बिट्रेरी अब्यूज ऑफ पावर, दीज आर दी बेनिफिट्स, है ना. पीएम केयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई. नाउ द ऑफिस ऑफ CJI सिंस January 2019, ऑफिस ऑफ CJI इज अंडर RTI. However, political parties, even as they are availing the national political parties, BJP, Congress and state political parties, जिनको
नेशनल रेडियो पे हमारा जो AIR FM वगैरह है उन पे फ्री एयर टाइम मिलता है। जो बीजेपी का दिल्ली में ऑफिस है, कांग्रेस का दिल्ली में ऑफिस है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू, उनको फ्री में मिला हुआ है। स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिनको दर्जा दिया है उनको ऑफिसेज मिले हुए हैं। सो दे आर ऑल्सो अवेलिंग ऑफ व्हाट, स्टेट एड, स्टेट हेल्प, बट it is not up to the extent of substantial funding as per the definition of public authority given under section 2H of RTI Act. Substantial funding नहीं ले रहे, up to 90% of the खर्चा पानी of political parties is not coming from public सरकारी consolidated fund या state fund, इसीलिए consolidated fund of India or consolidated fund of any state, इसलिए they are exempt. This is the rationale being given by political parties so that they should not be put under RTI. बहुत बार applications फाइल हुई हैं कि political parties होनी चाहिए। rationale ये है, political parties funding is the wrong criteria to assess whether political parties should be treated as public authority or not. Why they should be treated as public authority? Because they control the conduct of MPs and MLAs in houses, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में। तो जब यहां पे क्या है, मॉनेटरी क्राइटेरिया, फंडिंग का क्राइटेरिया इज द फ्लॉड क्राइटेरिया जस्ट टू जस्टिफाई कि हम अंडर RTI के अंडर नहीं आएंगे। स्वच्छता या स्वच्छ भारत मिशन यदि शुरू करना है तो वो आपके पांव से शुरू होगा, है ना नेताजी, समझ रहे हो ना किसको बोल रहा हूं मैं। तो वहां से शुरू होगा। पॉलिटिकल पार्टीज में जब तक स्वच्छता नहीं आएगी, जब तक झाड़ू वहां पे नहीं लगेगा, तब तक क्या होगा, आम आदमी पार्टी भी खास आदमी पार्टी बन जाएगी, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कितनी भी अच्छी इंटेंशंस हो किसी भी लीडर की, तब तक नहीं होगा। पॉलिटिकल फंडिंग इज द रूट कॉज ऑफ करप्शन। तो जब ये हमारे MPs और MLAs का कंडक्ट गाइड करते हैं कि किस बिल पे कैसे वोट करना है, दिल की सुननी है या फिर पार्टी विप की सुननी है, जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को कंट्रोल कर रही हैं, पब्लिक अथॉरिटी तो इन्हें माना जाना चाहिए ना। समझ में आया? ये सारी चीजें। RTI अमेंडमेंट्स, earlier the information commissioner and CIC were made on par with election commissioner and the CEC respectively. पहले वाले 2005 के एक्ट में क्या था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर and rest of the information commissioners were at par with CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दर्जा मिला हुआ था सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन, जस्ट 1 मिनट, CIC की पोजीशन जो थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोजीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल थी, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे उनकी पोजीशन इलेक्शन कमीशन के बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके इक्वल थी, ठीक है, respectively, but the government removed this statutory protection. Government pushed the RTI Amendment Act 2009 जो कि 2019 which was passed in July 2019, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया, which allows the central government to determine the tenure and the salaries of all information commissioners. Central government Ministry of MOPT जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो डिसाइड करेगी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी क्या है। दिस विल बी लाइक अ स्लॉट, दिस विल बी लाइक एन आघात ऑन ऑटोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, है ना, कि भैया मैं डिसाइड। हाउएवर वंस प्रोटेक्शन भी है इसमें, वंस एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड, their salary and terms of office could not be varied to their disadvantage, but they could be varied to their advantage. तुम ये राफेल के बारे में इंफॉर्मेशन मत देना, मैं तुम्हें पास करा दूंगा, अगला टेन्योर भी तुम्हारा दे दूंगा, क्योंकि मैं सेवादार हूं। समझ रहे हो ना बात को? मतलब तुम ये वाली इंफॉर्मेशन PM केयर्स पे तुम मना कर दो कि नई इंफॉर्मेशन नहीं देनी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में केस गया फॉर एग्जाम्पल, और मैंने तुम्हें बोला कि नहीं PM केयर्स मतलब I am taking care of it, I am the prime minister or I am the chief minister, तो तुम CM cares के बारे में इंफॉर्मेशन मत देना, अगला तुम्हारा टेन्योर, I can vary the tenure to your advantage, है ना। एडवांटेज मतलब 5 साल और मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि जनता ने मुझे दिए हैं, क्योंकि जनता भाइयों बहनों है। नाउ
The non-appointment of commissioners in the information commissions in a timely manner leads to large piling up of cases. Non-imposition of penalties in deserving cases by commissions promotes a culture of impunity. Penalties नहीं लगती, उनको लगता है RTI को ऐसे ही ले लो, दे स्टार्ट टेकिंग RTI कैजुअली. ये कंसर्न्स हैं. अभी अमेंडमेंट्स पे हम डिटेल में आएंगे. कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन क्वेरीज आर पोज्ड टू देम. कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अब स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ही क्वेरीज हैं तो ये प्रॉब्लम है. RTI एंड कोरोना वायरस क्राइसिस, इफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड अफेक्टेड बाय, ये अच्छी बातें हैं. ठीक है, ये देख लेना थोड़ा सा. PM केयर्स विल नॉट बी अंडर RTI, ये सिलेक्टिव चीजें हो रही हैं. ठीक है. प्ली इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स ऑनलाइन RTI पोर्टल्स इन स्टेट्स, ये इशू था, हमने कवर कर लिया. जन सूचना पोर्टल का एग्जाम्पल दोगे राजस्थान का. ठीक है. रेजिडेंशियल, सो दैट NRIs जिनको हम बोलते हैं कि भैया तुम PM केयर्स में पैसे डोनेट करो, हमारा विदेशी मुद्रा इतनी सारी आती है, फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं. वी हैव आवर इंडिया, आवर कंट्री हैज गॉट इन you answerability towards them also. We owe them. This is our responsibility to at least share the information about the working of the government of India. जब भी कभी ये फंड्स आते हैं तो कैसे काम कर रही है सरकार, उनके बारे में जागरूकता उनके पास भी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, राइट. Center had also requested various state governments to explore the feasibility of implementing online RTI portals, right. इतना बढ़िया mygov.in बनाया है, तो ये RTI पोर्टल एटलीस्ट सेंटर पे तो फटाफट से बनाया जा सकता है ना, क्योंकि क्या क्या बनाया गया है आप देखोगे, बहुत अच्छी चीज़ें बनाई गई. जेम पोर्टल बनाया गया है, फिर उसके बाद नाम बनाई गई है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. NIC ने इतने अच्छे काम किए हैं, तो ये तो पॉसिबल ही हुआ. जैसे एक जैसे हम आजकल वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं ना, हमारे लिए जितना वर्डप्रेस की वेबसाइट है, GoDaddy पे जाओ तो सबसे बड़े जो डैडी हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए तो बहुत आसान है ये, है ना. उनको तो GoDaddy पे भी नहीं जाना, सिर्फ यस डैडी बोलना है, यस बच्चा बोलना है, और बच्चे जो है NIC वगैरह वाले वो बना देंगे. लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. However, only the states of Maharashtra and Delhi have established their respective online portals for obtaining information from the departments. ये करा जाना चाहिए. FAQs क्या है? As per section 6, RTI request may be made in writing to CPIO of this commission. इसमें मेरा ये कहना है, what is RTI, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना गाइस. प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं. So we have started incorporating the necessary information related to prelims in this FAQ section of JV's classes, right? So RTI applications received in 2017, this is the fodder material for mains examination. Without data you would not be able to take any stand. कोई भी पक्ष या विपक्ष नहीं ले पाओगे आंसर में जब तक डेटा नहीं होगा, right? Concerns. Recently center denied RTI request for details of the ongoing recruitment process for 4 vacancies in CIC. इसके लिए RTI एप्लीकेशन फाइल किया गया कि इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, नहीं बताया गया. RTI के CIC के बारे में जब इंफॉर्मेशन मांगी गई नहीं दी गई. सेक्शन 22 ऑफ द RTI एक्ट विच डिक्लेयर्ड द RTI टू हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. गया जमाना सीक्रेसी का. राफेल वाला जो डिसीजन था उसको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में डाला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि नहीं, राफेल वाली जो बात है जो हिंदू ने रिवील करा था, हिंदू के खिलाफ एक केस आया कि हिंदू ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वॉयलेट करते हुए यह किया है. सेकंड ARC 2008 ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को रिपील किया जाए और ट्रांसपेरेंसी लॉ लाया जाए. ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, शपथ जो दी जाती है सिविल सर्वेंट्स को, मंत्रियों को. ओथ ऑफ सीक्रेसी, उसमें एक वर्ड होता है, ठीक है, आई विल कीप सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दैट आई विल बी इन कस्टडी ऑफ. नहीं, उसमें लिखा जाए कि आई विल ट्राई टू बी एज ट्रांसपेरेंट एंड एज ओपन एज पॉसिबल, कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीक्रेसी. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा तवज्जो दी जाए. सेकेंड ARC ने भी ये कहा था. Section 24 mandates even security and intelligence organizations to disclose information on corruption and human rights violations. ये सारा कुछ लिखा गया है. सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज बाकी कुछ ना बताओ, लेकिन कितने लोग मरे, कितने लोग हताहत हुए आपके ऑपरेशंस की वजह से, वो चीजें डिस्क्लोज करनी होंगी. इवन दो इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट वो लोग मरे, लेकिन ये तो बताओ ना कि क्यों मरे, कितने मरे, ये तो बताओ. बाय एंड लार्ज दिस कमिटमेंट हैज नॉट बीन मेट एंड ओनली लिप सर्विस हैज बीन पेड. Section 8
allows the government to not to disclose, थोड़ा सा ठीक करना है इसको, to not disclose information if the public interest disclosure outweighs the harm to protected interest. ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट में सीबीआई की कोई सीबीआई की अंडर प्रोसेस अगर कोई इंक्वायरी चल रही होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम जब तक कंक्लूड नहीं हो जाता उसकी इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है, समझ में आता है। लेकिन एग्जाम हो गया, टॉपर बन गया, ये सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई उनकी, बच्चा भी हो गया, उसके बाद भी उसकी आंसर शीट नहीं रिलीज करती यूपीएससी। सेक्शन 8 इज लाइक, ये 8 बनता है ऐसे, है ना, इन्होंने 8 बना रखा है ऐसे, गोल गोल जलेबी, डार्क होल, कुछ भी इसमें डाल दो, है ना, मल्टीपल रिंग्स कर दिए इसके। सो सेक्शन 8 इज द डार्क होल। सेक्शन 4 जो है ट्रांसपेरेंसी की बात करता है आरटीआई। सेक्शन 4 में कमिटमेंट थी, पार्लियामेंट ने ये कहा था, इट शैल बी अ कांस्टेंट एंडेवर ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन। अपने आप से पब्लिक अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन देनी होगी, लेकिन दी नहीं जाती, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन अ डेमोक्रेसी। आज के इसमें युग में अगर इंफॉर्मेशन हो तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाए ना, लेकिन दी नहीं जाती। अब 6% फॉल बिटवीन 2015 एंड 16% वाज रिपोर्टेड। 2015-16 में 6% गिरावट देखने को मिली आरटीआई एप्लीकेशंस में, filed with 1950 public authorities of the central government. This trend is worrying because people are increasingly finding that getting information from the government is becoming difficult. या ये भी हो सकता है कि लोगों का सारा काम अच्छा हो रहा हो, है ना, या ये भी हो सकता है कि परसेप्शन वैल्यू से मुन्ना बच्चा सो गया हो कि सब ठीक चल रहा है। राइट टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट, द फर्स्ट स्टेप इज वर्किंग वेरी फाइन, लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं, राइट। पेंडेंसी ऑफ केसेस आर राइजिंग and quality of orders going down, primarily because many posts of commissioners remaining vacant for long period. Appointments to SIC have become increasingly politicized and mostly retired bureaucrats. Why only retired bureaucrats? ये सारे फ्लॉज हैं, ठीक है, ये फ्लॉज हैं। अब यहां पे क्या लिखोगे मेंस में, पढ़ना आसान है, ठीक है, पढ़ लोगे सब कुछ कर लोगे। As corroborated, ठीक है, the pendency of cases is rising and quality of orders is going down. That is why we are observing this 6% fall. और as corroborated by 6% fall between 2015-16 and 16-17, we can say that, as corroborated by this fact, we can say that yes, people are getting jaded. Jaded तो नहीं लिखोगे, थोड़ा टेक्निकल है, मतलब people are getting dissuaded from RTI as an efficacious way of, एक effective way of availing the information, ठीक है। This is the first time there has been a dip in the number of RTI applications filed with the central government, क्योंकि माहौल ठीक है, सब बढ़िया है, तो लोगों को लगता होगा शायद एप्लीकेशन फाइल करने से फायदा ही नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है लोगों को लगता है हाँ एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो भी रिप्लाई आएगा ही नहीं क्योंकि वैकेंसीज हैं और ये सब है। अबाउट 1/3 ऑफ द पोजीशंस ऑफ द सीआईसी आर वैकेंट, 1/3 वैकेंसी, समझ रहे हो। ईमानदार लोग नहीं होंगे या तो, समझ रहे हो, मिल नहीं रहे होंगे ईमानदार, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये है ना कि ईमानदारों को लगाना है। नाउ इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिसमें 11 मेंबर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वहां पे 3 वैकेंसीज। नो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इन आंध्र प्रदेश वाज कार्व्ड आउट। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इक्वली बुरी हालत है, 72% ऑफ द पेंडिंग अपील्स। 6 biggest commissions including the state ones, including the CIC such as Maharashtra and UP have 72% of pending appeals and complaint in the country, right? Now measly penalties are invoked in just 4% of the cases where it can be imposed. Rupees 1.29 crore has been collected through penalties by commissions. 29.36 lakh was collected by CIC since 2005 by way of penalties. ये हालत है। penalties अगर ऑफिसर्स पे इम्पोज होंगी for not disclosing the information, तब जाके काम आगे बढ़ेगा। Right now, center shall have the power of weakening the RTI, Right to Information Amendment Bill 2019. इसका यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको किया है, वे फॉरवर्ड ये सारा कुछ आ गया, इस पे दोबारा से आता है, 1 मिनट रुक जाओ। सी पहले वाले एक्ट में क्या था और अब क्या किया गया है, क्योंकि हम सतयुग में हैं। 2019 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स
at the central and the state level will hold office for a term of 5 years. Ab the bill removes, the new act, amended act removes this provision and states that the central government will notify the term of office for the CIC and ICs. ठीक है, salary of CIC and ICs at the central level will be equivalent to the salary paid to Chief Election Commissioner. Chief Election Commissioner यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ में टाई अप कर दिया, इतनी आसानी से डाइल्यूट नहीं होगा, है ना. अब क्या है, द न्यू अमेंडेड एक्ट removes this provision and states that salaries, allowances and other terms will be decided by the great man. ठीक है, and other conditions of service of the central and the state CIC will be determined by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें डिटरमाइन करेगी, पार्लियामेंट नहीं लिखा. पार्लियामेंट लिखा होता तो फिर भी सोच सकते थे कि ओपोजिशन थोड़ा विद्रोह करेगी, सरकार रुक जाएगी. नहीं, ब्लैंकेट. क्या होता है ना कि जब जजेस की सैलरी रिवाइज होती है, पार्लियामेंट एक बिल पास करती है, एमपीज की सैलरी रिवाइज होती है तो एक बिल पास होता है, उस पर डिस्कशन होती है. यहां पे कोई डिस्कशन नहीं होगी, एमओपीटी यूनिलैटरली कैन टेक दैट डिसीजन. ठीक है. सिमिलरली द सैलरी ऑफ सीआईसी एंड आईसी विल बी इक्विवेलेंट टू द सैलरी. पहले ये था, ठीक है, अब नहीं है. एक्ट स्टेट्स दैट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ Chief Information Commissioner and Information Commissioners at the central and the state level, if they are receiving pension or any other retirement benefit for previous government service. जैसे मैं IAS रिटायर हुआ तो मुझे पेंशन मिलती है 70,000, 80,000, 1,20,000 सेवेंथ पे कमीशन के बाद. तो अगर मुझे 70,000 पेंशन मिलती है तो मुझे पेंशन नहीं मिलेगी. ठीक है, देयर सैलरीज विल बी रिड्यूस्ड. सैलरी कितनी मिलेगी, पेंशन एडजस्ट हो जाएगी ताकि सरकार पे खर्चा ना पड़े. अब ये बिल ने रिमूव कर दिया है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितनी सैलरी मिलेगी. प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विस, ये सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी थी. ये है मेजर इसकी एक्सप्लेनेशन. वे फॉरवर्ड में क्या क्या किया जाना चाहिए इसको देख लेते हैं. ये सेम थिंग वी हैव कवर्ड देयर इन अ बेटर मैनर, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट फॉन्ट वुड नॉट हैव बीन विजिबल. नाउ given that 70 to 80% of RTI, all the RTI applications arise from personal grievances. मेरा क्या, मुझे क्या. जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि हमारे यहाँ पे लोगों की ये डिजीज है कि मेरा फायदा होगा तो मैं पर्सनल ग्रीवेंस के लिए फाइल करूंगा. तो ऐसे केस में आरटीआई में भी ये फिनोमिना देखने को मिलता है. तो it would be proper, it would help the cause of transparency if the ministries start opening up their own files to help the flow of information. It would amount to proactive disclosure. In several cases, when people are not satisfied with the replies of the RTI, second appeals are filed. अब ये एक और फिनोमिना है. पता है क्या किया जाता है? मंत्रियों को आप टीवी पे देखते हो, how they try to distort the information that is being sought. मीडिया पूछता है, सर आपने इसके बारे में ये क्यों नहीं किया, वो कुछ और ही बोल के मंत्री जो है कार में बैठ जाते हैं. होता है ना ऐसे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, सब जगह. मतलब हम पूछते हैं आम, वो बता देते हैं इमली. ठीक है, वैसे ही आरटीआई में इंफॉर्मेशन को सप्रेस करने के लिए जानबूझ के, कभी कभी क्या होता है, एक सिटीजन गुस्से में होता है. जैसे आपको ये लगा कि मेरा प्रीलिम्स कैसे नहीं हुआ, तब आप 30 दिन 15 दिन गुस्से में रहोगे. आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करोगे तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, हाँ कार्य अभी प्रगति पर है. फिर क्या होगा, आप सोचोगे यार मेरी दुर्गति हो जाएगी, मैं थोड़ा और प्रगति कर लेता हूँ, प्रोग्रेस कर लेता हूँ अपना, है ना, अगले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन ही कर लेता हूँ. तो ये सारी चीजें करी जाती हैं. क्या दिए जाते हैं, डिस्टॉर्शनरी फैक्ट्स, रिप्लाईज दे दिए जाते हैं ताकि बंदा थक जाए. एक पौड़ी से दूसरी पौड़ी पे, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो वो उसको घुमाया जाता है. गवर्नमेंट का तो कुछ जाएगा नहीं, गवर्नमेंट के तो वकील इसीलिए बैठे हैं, है ना. दिस बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव व्हेन ओनली अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ प्रिविलेज्ड एंड द एजुकेटेड पीपल हैव देयर सेकंड अपील्स एड्रेस्ड. Thus prompt disclosure would help the masses. Every public information officer to maintain records of the cases handled by them. ये सारी चीजें. सेक्शन 4 is too weak a law and it should be made more specific. कि कितने टाइम बाउंड मैनर लिखना बहुत अच्छा है, कितने टाइम में. मेरा ये मानना है कि अगर मेरे पास 1 अक्टूबर को कोई इंफॉर्मेशन आई, अगर वो इंफॉर्मेशन विद इन 7 डेज, वर्किंग डेज, चलो 10 डेज मान लेते हैं, अगर वो पब्लिक हॉलीडेज के अलावा विद इन 10 डेज में अपलोड नहीं हुई तो मेरी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आईएएस ऑफिसर की सैलरी में से पैसे कटने चाहिए. ठीक है, ये करना जरूरी है इसमें. A mechanism will be devised to deal with frivolous application. देखो ये सब लिखा हुआ है. I cannot put everything in PPT because you know the reasons. ठीक है, कभी कभी extempore points मेरे को अच्छे आते हैं. Expenditure should be charged. ठीक है,
एक्सपेंडिचर चार्ज होना चाहिए। CIC आज ये बोले कि जन सूचना पोर्टल बनाने हैं, सभी के लिए पैसे दो तो दो, है ना। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट इलेक्शन कमीशन हैज टू बेग बिफोर लॉ मिनिस्ट्री इन ऑर्डर टू इंस्टॉल VVPATs, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ये पूछा कि भैया आप इतना टाइम हो गया क्यों नहीं लगा रहे हो, वो VVPAT लगाओ, है ना। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि वो क्या है ना, हमारी है ना फाइल है ना, वो लॉ मिनिस्ट्री के पास पड़ी है, हिचकिचाते हुए, डरते हुए। तो लॉ मिनिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने बोला दो इनको पैसे, तब जाके पैसे मिले। सो despite being a constitutional body, it is not necessary that all the financial demands of election commission could be entertained. That is why I am writing this point that expenditure of CIC should be डिक्लेयर्ड एज चार्ज एक्सपेंडिचर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए ताकि कोई भी सरकार मनमाने कदम से इनकी कंडीशंस को डाइल्यूट नहीं करे, ठीक है। PIO जो रहता है उसकी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को मैंने आपको बताया कि केस स्टडी में भी एथिक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। PIO की जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, PIOs जो डिपार्टमेंट्स में रहते हैं वो किसके अंडर होने चाहिए? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर होने चाहिए या CIC के अंडर होने चाहिए, सेंट्रल के जो है। यानी कि वो PIO सैलरी किससे लेगा? उसी कॉलेज या उसी सरकारी संस्था से लेगा, ऑर्गेनाइजेशन से लेगा जहां पे वो काम कर रहा है, या फिर यहां से लेगा, ठीक है। उसकी सैलरी ना रुके, उसको हैरेस ना किया जाए। अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, कॉलेज के प्रिंसिपल ने महंगे रेट पे AC खरीदे हैं तो, या अपने दामाद के घर पे एक AC लगवाया है, तो PIO ये बता देगा। अगर नहीं मिल रही इंफॉर्मेशन, जो वहां का फाइनेंशियल ऑफिसर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो बोलता है मैं नहीं दे रहा इंफॉर्मेशन, तो PIO ये लिखेगा इंफॉर्मेशन सॉट बट नॉट प्रोवाइडेड। ऐसे केस में PIO से सेकंड अपील वाली जो अथॉरिटी है उसके पास अपील 15 दिन के लिए रहेगी, 30 दिन 60 दिन नहीं, 15 दिन, क्योंकि जानबूझ के इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया जा रहा है, यानी कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ सम करप्शन, चांसेस ऑफ करप्शन हैविंग टेकन प्लेस आर हाई। तो ऐसे केस में इंफॉर्मेशन जल्दी होनी चाहिए, इसको अच्छे से लिखना जो मैंने बोला है, ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होनी चाहिए, टाइम बाउंड अपॉइंटमेंट, टाइम बाउंड ऐसे नहीं लिखना, विद इन 6 मंथ्स। अगर कोई अनड्यू वैकेंसी अराइज होती है, किसी की डेथ हो गई, कोई रिजाइन कर गया, है ना, तो 6 महीने के अंदर अंदर इस प्रक्रिया को खत्म किया जाए, अदरवाइज दिस विल अमाउंट टू वायलेशन ऑफ द एक्ट। अगर नहीं होती, यानी कि रेगुलर वैकेंसीज अराइज हो रही हैं, तो द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स शुड बी स्टार्टेड 6 months बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट, सो दैट देयर इज नो स्कोप फॉर वैकेंसीज, ठीक है। ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो वी विल बी एबल टू सी द रोल प्लेड, वी विल बी एबल टू सी द फुल ब्लॉसमिंग ऑफ RTI एक्ट, राइट। ऑलराइट, तो ये था। अब इसको देखोगे, डिस्कस द रोल प्लेड बाय की स्टेक होल्डर्स। हु ऑल आर द स्टेक होल्डर्स? कौन कौन होते हैं स्टेक होल्डर? भागीदार कौन है इसमें? CICs, मिनिस्ट्रीज, MOPT, ठीक है, सिटीजन्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स है ना। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने वाला PIO, सभी का रोल आपको एनालाइज करना है। करोगे, एक्सपेरिमेंट करना, सभी लोग करना इसको। ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड आंसर। मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स अपने आप याद होने लग जाएंगे अगर मेंस की प्रिपरेशन करते हो, करके देखो। अदरवाइज यू कीप ऑन बॉदरिंग योरसेल्फ कि मेमोराइज कैसे होगा कैसे होगा। आंसर लिखने लगोगे, अपने आप फैक्ट्स आने लगेंगे, और क्रॉस चेक भी करोगे आंसर लिखते टाइम। Yes, Twinkle, very nice. Another dimension is bringing private organizations under RTI. Private sector की वो organization जो sovereign functions कर रही हैं, यानी कि बिजली, पानी सप्लाई करना, वाटर सप्लाई, आजकल इंटरनेट भी जोड़ लो, sovereign। यानी कि what are sovereign functions? Sovereign functions are those functions for which we elect our government, जो बेयर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजंस होती हैं सरकार से, जिसके लिए वो सरकार को अच्छा या बुरा कहता है, दोबारा चुनता है या नहीं चुनता है। हेल्थ सर्विसेज, वाटर फैसिलिटीज, है ना,
ये बुनियादी सेवाएं जिन्हें हम बोलते हैं। अगर सॉवरेन फंक्शंस में जो पहले सरकार करती थी, सड़क बनाने का काम, ये सब यातायात के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होगा, उनमें अगर प्राइवेटाइजेशन लाया जाता है तो सिटीजन को पूरा हक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन सब्सटैंशियली फंडेड है या नहीं, सिटीजन शुड बी एंटाइटल्ड टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, आरटीआई। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आने वाले लेक्चर्स में इसी कोर्स में करंट अफेयर्स राउंड अप 365 में हम देखेंगे। ये कोर्स आपका 2021 का जो कोर्स है वो 20 जून 2020 मई 2021 तक चलता रहेगा। तो ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को डीक्लासिफाई कितने टाइम में किया जाए, 4 इयर्स 5 इयर्स, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन डीक्लासिफाई होनी चाहिए, चाहे वो राफेल के बारे में या किसी और फेल के बारे में, राइट। ये सारा कुछ है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? CJI ऑफिस इज अंडर RTI नाउ, दैट वी विल कवर अगेन लेटर ऑन while we will be talking about the topic of judiciary. तो this is the topic based manner। 2-3 क्वेश्चंस मैंने क्लास के बीच में जो बोले उनका आंसर्स आप लिखोगे और सेंड करोगे the email ID that you've been provided. All right. So I'll be sharing the information in the exclusive Telegram group that has been made for this particular course. All right guys. ये था हमारी आज की क्लास में। See you at 5:30 PM for the Indian economy course. All right. Any doubts, guys? Done? All right. Thank you, everyone. If somebody is in the process of typing the question or doubt, I give you 30-40 seconds for that. It's very simple. I told you that he is asking how PM Cares Fund has been put under RTI. Why information has not been disclosed? You declare an authority as a public authority and put it under section 8. So no need to disclose the information. Okay. You've got sufficient points. No need to read anything else. पता नहीं कितने सालों की चीजें मैंने क्लब कर दी हैं इस क्लास में, तो इधर उधर मत भटकना। आरटीआई का कोई और आर्टिकल आए, टॉपिक बेस्ड मैनर में सारा कुछ कवर हो जाएगा। कोई एक डायमेंशन बता दो। स्टेट से हमने जन सूचना पोर्टल वाली न्यूज ले ली, ठीक है, तो राजस्थान का एग्जाम्पल भी कोट कर दिया, बैकलॉग कितना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सारा कुछ इस क्लास में डिस्कस हो गया है। और कोई डायमेंशन जो है जैसे जुडिशरी CJI अंडर RTI, उसके क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, उसमें क्या कमियां रह गई, वो हम ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशरी एज अ टॉपिक जब लेंगे उसमें कवर करेंगे। Nidhi's question comes, can we challenge the non-filing of vacancies? Yes, ये can we challenge the non-filling up of vacancies on time? Yes, we can do that, but there is a culture of accountability. That is why Dr. B.R. Ambedkar and the great leaders of our country, they had said, what did they say? That respect the men who respect the institutions. Don't respect the individuals who run the government in the individualized manner. ठीक है, तो वो सारी चीजें कल्चर एक आ जाता है तो डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को कितना अकाउंटेबल ठहराना चाहता हूं, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, राइट। You cannot help it. You can challenge it in the judiciary. Judiciary also, allegations are being leveled against judiciary की नहीं होता. But confining ourselves to the requirement of the examination, we have covered sufficient aspects of it. You can challenge the thing, right? So this was all. Thank you everyone. Thank you guys. Bye bye.